بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال اللہ تعالی فی موضع آخر ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات، بڑائی و بزرگی و کبریائی و حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس کی فضل اور توفیق سے ہم اور آپ اس کار خیر میں جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین کی طرف سے بھلائی، نیکی اور خیر کی توفیق ملنا یہ ایک اعزاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چنندہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یقیناً کامیابی و کامرانی و نجات اللہ کی عبادت میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سبھی کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا اور تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین، جو شریعت، جو اسلام لے کر آئے تھے اللہ تو ہم سبھی کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی سورۃ المائدہ آیت نمبر 93 سے ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 93 کے اندر بیان کیا لیس علی الذین آمنوا، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جو کچھ انہوں نے کھایا ہو یا پیا ہو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ در حقیقت اس آیت کریمہ کا تعلق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس قول کے اوپر ہے کہ جس وقت شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی ابھی تک شراب حرام نہیں ہوا تھا، تو یہ ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ عربوں کے اندر جہاں بہت ساری فطرتی چیزیں تھیں ان میں سے شراب نوشی بھی تھا۔ شاید جیسے آج کے زمانے میں ہے بہت سے لوگ شراب نہیں پیتے، اس وجہ سے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن بہت سارے مسلمان پھر بھی پی لیتے ہیں۔ اس زمانے میں الٹا تھا، شراب حلال تھا سبوں کے لیے، اس میں کچھ لوگ تھے جو شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ اب بہت سارے ایسے صحابہ اکرام جنہوں نے شراب نوشی کی اور وہ ایمان لائے، بدر میں شرکت کی، شہید ہو گئے، تو صحابہ کو یہ بات بہت کھٹکنے لگی کہ آیا جو ہمارے ساتھی دنیا سے چلے گئے ہیں، حالانکہ ایمان کی حالت ہی میں تھے، لیکن انہوں نے شراب کو تو پیا تھا اور وہ حرام شے ہے، کیونکہ جب یہ صحابہ کے ذہن میں بات آئی اس وقت شراب حرام ہو گیا تھا۔ جو صحابہ شہید ہو گئے اپنے دور میں بدر کے موقع پر، اس وقت شراب حرام نہیں ہوا تھا، تو جو صحابہ زندہ تھے ان کو یہ بات بڑی کھٹکنے لگی، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا کہ اگر کوئی صحابی اس حال میں فوت ہوئے کہ شراب نوشی کرتے ہوں اور وہ اسلام کے لیے جان دے دی یا نیچرل موت ڈیتھ ہو گئی، پھر بھی ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ اس وقت شراب حرام نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے اسی چیز کو یہاں پہ کہا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے
लैसा जुनाह, उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। फी मा तइमू, कि जो कुछ जिन्होंने खाया हो या पिया हो। तइमू ये उर्दू का लफ्ज़ है, ताम कहते हैं खाने पीने को। जो कुछ उन्होंने खाया पिया हो उस पर कोई गुनाह नहीं। इज़ा मत्तक़ौ, जबकि वो तकवा गुजार भी, तकवा वाले भी। अल्लाह ने ये साफ कह दिया, तकवा ही था उनके अंदर। चूंकि हुर्मत नहीं थी तो हो सकता है हाथ लगा लियो। जब हुर्मत नहीं है किसी चीज के बारे में, और देखिए ये नुक्ता याद रखें कि उस समय दीन मुकम्मल नहीं हुआ। जब दीन मुकम्मल हो जाए उसके बाद हम अपने तौर पर कुछ कमी नशी नहीं कर सकते। यानी जैसे हम लोगों को जो दिन मिला वो बिल्कुल एक समूचा दिन मिला जो कंप्लीट था। हम लोग जब होश में आए, जब हम लोगों ने शऊर हासिल किया, जब दीनदार अल्लाह ने बनाया, तो हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं। क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, क्या खा सकते, क्या नहीं खा सकते। लेकिन उस दौर में शरीयत का नुज़ूल बदस्तूर जारी था। जैसे एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ाई और आपने 3 रकअत पर सलाम फेर दिया, फिर अपने मुसल्ले से उठे और अपने हुजरे में चले गए। किसी ने चू तक नहीं कहा। सहाबा ने क्यों नहीं कहा? सहाबा ने आपस में डिस्कशन किया कि कल हम लोग असर 4 रकअत पढ़े थे, आज 3 पढ़े हैं, शायद लगता है वही नाजिल हुई हो। क्या समझ में आ रही? इसलिए किसी ने कुछ कहा नहीं, कोई टोका नहीं उस वक्त। लेकिन चूंकि चर्चा जब हुई तो सहाबा ने कहा कि हो सकता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल भी गए हों, ये भी तो हो सकता है। तो चले एक आदमी जाए, जाकर तरीके से अदब से पूछ लेते हैं। एक साहबी बड़े और उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हुजरे में जाकर इजाज़त तलब की गए और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई वही वगैरह नाजिल हुई है क्या नमाज के ताल्लुक से? उन्होंने कहा नहीं, ऐसी तो बात नहीं। तो आपने असर की नमाज 3 रकअत पढ़ा दी। पहले तो अल्लाह के नबी को यकीन नहीं हुआ, फिर आप खुद नीचे आए मस्जिद नबवी के अंदर और आपने पूछा दीगर सहाबा से जो इंतजार थे मस्जिद के अंदर, सब ने बैक जुबान कहा कि हाँ आपने आज 3 रकअत नमाज पढ़ाई। कहने का मतलब ये है कि उस वक्त शरीयत मुकम्मल न थी। शरीयत के अंदर जो भी मामलात थे वो कंप्लीट नहीं थे, वो आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन और मौके महल के एतबार से नाजिल हो रहे थे। तो सहाबा ने कहा तो अल्लाह के रसूल फिर गया, एक रकअत मुकम्मल किया आपने, सजदे सहू के सलाम फेरा। खैर, तो यहाँ पर भी सहाबा को यह एतराज था कि जो हमारे साथी दुनिया से चले गए ईमान की हालत में, वो तो शराब पीते थे, शराब तो हराम है, अब उनके साथ क्या होगा? तो अल्लाह ने साफ साफ कहा जबकि वो तकवा वाले थे, इज़ा मत्तक़ौ, जबकि वो तकवा वाले थे, फिर भी उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं, लैसा अला जुनाह, कोई गुनाह नहीं जो कुछ उन्होंने खाया और पिया। फिर अल्लाह ने कहा वो आमनु व आमिलुस सालिहात, फिर वो ईमान लाए और नेक अमल किए, सुम्मत तको, फिर तकवा इख्तियार किया, वो आमनु, फिर ईमान लाए, सुम्मत तको, फिर तकवा इख्तियार किया, वो ahsanu, और वह बेहतरीन नेक अमल किए, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेकोकार से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला ने एक सिलसिला जिसे नसबनामा होता है ना, फला बिन फला बिन फला बिन फला, अल्लाह ने उस एतराज का जवाब दे दिया। 2-3 चीजें हैं इसके अंदर। एक चीज जो सबसे बड़ी चीज है, क्या? एक आदमी कुफ्र की हालत में था, अल्लाह ने उसको हिदायत दी, क्या हो गया? मुसलमान हो गया। तो क्या होता है, शरीयत का कानून क्या है कि अगर कोई कुफ्र से दायरे इस्लाम में आ जाए तो उसके साबिका गुनाह माफ हो जाते हैं, साबिका गुनाह माफ हो जाते हैं। उसमें एक सवाल मैं खुद ऐड कर देता हूँ। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि एक आदमी कुफ्र की हालत में हुकूकुल इबाद में किसी को सताया हो, अब वो जब इस्लाम कबूल कर लेगा तो क्या उसके वो मामला भी खत्म हो जाएंगे? तो इस पर देखिए, इस पर उलमा का कई अकवाल है। एक कौल तो ये है कि अल्लाह ताला उस हुकूकुल इबाद की जो हक तलफी किया, किसी को सताया होगा, किसी का माल नाजायज तौर पे कब्जा कर लिया होगा या हड़प लिया होगा, तो अल्लाह ताला उसके इस्लाम को ऐसे सारी चीज़ों को माफ़ कर देगा। एक कौल ये भी है। एक कौल उलमा का ये भी है कि नहीं, वो चीज़ माफ़ नहीं होगी, लेकिन जब वो आदमी मुसलमान बन रहा है खुलूस से, तो खुद ही जाकर उससे माफ़ी मांगेगा, ये तो उसकी जिम्मेदारी में। तो इसीलिए तो इस्लाम में आ रहा है कि अल्लाह ने उसको हिदायत दे दी। जब वो इस्लाम में आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ें बहुत बड़ा जुर्म है, तो खुद ही चल कर जाएगा कि हाँ हमसे एक खामी गलती हुई है, आप उनको माफ करिए, कहे क्या भरपाई के लिए कर सकते हैं। ये सारी चीजें उसके अंदर शामिल है। तो अल्लाह ताला ने ये भी एक बात यहाँ बयान की कि कोई गैर मुस्लिम से मुसलमान हुआ, फिर किसी वजह से वो गैर मुस्लिम हो गया, फिर अल्लाह ने उसको हिदायत तो मुसलमान हो गया। ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ। मदीने के कुछ अंसार साहबी
وہ بھٹک گئے تھے اور کفر کی حالت میں چلے گئے تھے، کیونکہ ان کو اس طریقے سے موڈیفائی کیا گیا، ان کے ذہن سازی کی گئی کہ یہ اسلام جو ہے یہ پرماننٹ نہیں ہے، اس میں کوئی بھی کام پرماننٹ نہیں ہے، کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے. آپ ابھی قبلہ ادھر تھا بیت المقدس کی طرف، ابھی قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا، کل کچھ اور ہو جائے گا. تو اس طرح کی لوجیکل باتوں میں پھنس گئے تھے. بعد میں جب ادھر گئے تو ان کو احساس ہوا کہ نہیں، ہم پہلے والے ہی ویسے تھے اسلام کے حالت میں، تو پھر لوٹ کے چلے آئے. تو لوٹ کے آئیں گے تو کیا اسلام ان کو اپنے اندر نہیں لے گا، داخل نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا ثم الذین آمنوا واتقوا الذین آمنوا واتقوا، یہ اللہ نے بار بار کہا کہ ایسے بھی اگر کسی کے ساتھ معاملات ہے تو گھبرائیں نہیں کہ ہم اسلام میں آ رہے ہیں پھر کفر میں جا رہے ہیں، اسلام میں آ رہے ہیں پھر کفر میں جا رہے ہیں، نہیں. تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العالمین نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے. آگے اللہ نے کہا آیت نمبر 94 94 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ضرور بضرور شکار میں سے کسی چیز سے یا شکار سے آزمائے گا. تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، جہاں تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچتے ہیں. شکار صرف بندوق یا تیر یا کمان سے نہیں ہوتا، ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے. ہرن ہے، ہاتھ سے پکڑ لے اس کو. تو اللہ نے کہا کہ اللہ تم کو شکار کے ذریعہ آزمائے گا. یہ آزمائش کس صورت میں ہوگی؟ شکار، عربوں کے اندر ایک فیل تھا، وہ شکار کرنے میں بہت شوق رکھتے تھے، شکار کرتے جانوروں کا اور اس کا گوشت کھاتے تھے. ایک شوق بھی تھا، کھانے کا دل نہیں بھی چاہ رہا ہے تو وہ تیر کمان لے کے نکل کے شکار میں جانوروں کا شکار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں شکار کا بارے اس لیے بیان کیا کہ یہ حالت احرام میں حرام ہے. ایک حاجی جب حج کرنے جاتا ہے یا ایک عمرہ کرنے، عمرہ کے جب احرام باندھ لے اور ابھی وہ احرام ہی کے دائرے میں، احرام کھلا نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں کیا حج یا عمرہ، وہ جانور کا شکار نہیں کر سکتا، اس کو منع کیا گیا ہے. کب کسی جانور کو مارے گا؟ کوئی ایسا خطرناک موذی جانور جو اذیت دے سکتا ہے، تکلیف پہنچا سکتا ہے، جان جا سکتی ہے، اس کی زہریلا جانور بھی کہہ سکتے ہیں، سانپ بچھو وغیرہ، تو اس کو اپنی سیفٹی میں مار سکتا ہے. یا اگر اس کو نہیں ماریں گے تو اس کے زہر سے ہم مر جائیں گے. ایسے شکار نہیں کر سکتا، حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اب تو پورا ایک شہر نما ہو گیا ہے. اب جو سچویشن ہے مکہ المکرمہ کی، خانہ کعبہ کی، کہ اب پہلے تو جنگلات تھے، پہاڑی علاقے تھے، آج بھی ہے، لیکن اتنا بہترین بنا دیا گیا کہ اب ایسے حالات پیدا نہیں ہوتے ہیں کہ اچانک شیر نکل جائے، اچانک باغ نکل جائے جس کو وہ شکار کرے، یا کوئی اور دیگر نیل گائے ہو جائے یا کوئی ہرن ہو جائے. اب ایسے حالات نہیں ہیں. لیکن مسئلہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حاجی کچھ آرام کر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی لمبا ٹائم ہے، جوہر سے اثر کرتے ہوئے شکار پہ نکل جاتے ہیں آرام کی حالت میں، تو دور دراز کے علاقے میں چلتے شکار کرنے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ تم کو اس کے ذریعے سے آزمائے گا. آزمائش اس لیے اللہ نے کہا کہ جو لوگ شکار کرتے ہیں ان کے اندر ایک شکار نشہ ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں مچھلی پکڑنے کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ لوگ رات کو نکل جاتے ہیں 10 بجے 11 بجے، رات بھر مچھلی پکڑ رہے ہیں، وہ ایک نشہ ٹائپ کا ہوتا ہے. وہ سوچتے کہ نیند نہیں آ رہی، چلو مچھلی پکڑتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ نیند نہیں چلو تہجد پڑھ لیں، تو وہ چلے جاتے ہیں، کچھ کام نہیں تو مچھلی پکڑ لیں. ایک شوق ہوتا ہے جس کی اہمیت وہی جانتے ہیں. شکار جو لوگ کرتے ہیں، جن کی جو نسلی طور پر جو عرب ہوتے ہیں اس زمانے کی، ان کے اندر چیزیں تھی، جیسے گھوڑ سواری، عربوں کو نسل در نسل ان کو ملا ہے. اسی طرح شکار کرنا، یہ جب اللہ نے قرآن کے اندر کہہ دیا کہ شکار سے آزمائے گا، اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ شکار بہت بڑی چیز تھی. آپ ایسے اندازہ لگا دیجیے، کچھ اور بھی اللہ کہہ سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جب تم حالت احرام میں ہو تو تم اللہ کی عبادت میں لگے رہو، ذکر و اذکار میں لگی رہو. جو حج کے جو ارکان ہے اس میں لگ جاؤ. ان چیزوں میں اپنا دھیان دو، ان چیزوں کو آپ کو نہیں کرنا، گرچہ تمہارے سامنے کے. یہاں پہ اللہ نے کہا تنالوا ایدیکم ورماحکم، جبکہ تمہارے ہاتھ، ید مطلب ہاتھ ہوتا ہے، اسی سے ایدیکم کی جمع ہے نا، رفع الیدین، دونوں ہاتھوں کا اٹھانا. ایدیکم تمہارے ہاتھ پہنچ جاتے ہو، یعنی اتنا قریب شکار آ گیا ہے کہ تیر کمان کی ضرورت ہے، ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں اس کو. ہم ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں یا اپنے نیزوں سے مار سکتے ہیں. پھر بھی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ نہیں، تم کو اللہ آزمائے گا. ہم حالت احرام میں ہیں اور شکار سامنے ہے، نہیں پکڑنا ہے. یہی تو اصل میں آزمائش ہے. دیکھو بندے کو اللہ رب العالمین نے جن جن چیزوں کے آزمائش میں ڈالا ہے، اس میں سے کچھ چیزیں فطری چیزیں،
अल्लाह ताला ने हम लोगों के फितरत के अंदर मौज मस्ती को रखा है, शौक जॉब को रखा है, फितरी चीज है। हम चाहते हैं कि हमारे सामने सारे वसाइल हो, हम तो कुछ चाहे फौरन हाजिर हो जाए। अच्छा खाना चाहते हैं, फितरी चीज है। अच्छा पहनना चाहते हैं, फितरी चीज है। घूमना फिरना चाहते हैं, फितरी चीज है। आराम की नींद सोना चाहते हैं, फितरी चीज है। हम चाहते हैं कि एक बार सोते तो सुबह 10-11 बजे उठे, फितरी चीज है। लेकिन अल्लाह ने उसी फितरत के बीच में आजमाइश रखा है। फजर का टाइम फजर भी क्यों रखा अल्लाह ने? देखते हैं कौन बंदा नींद की कुर्बानी देता है, फितरत के खिलाफ जाता है, अपना फितरत को पसंद करता है या अल्लाह के हुक्म को। जरूरत नहीं थी सुबह के, अगर हम लोग लॉजिकल बात करें तो उसको तो हम लोग अपने हिसाब से 8 बजे कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने जानबूझ के 4 बजे कर दिया। अब वहां आजमाने के लिए फितरत है, अल्लाह ने फितरत में पैदा किया नींद, सोएंगे बेहतरीन नींद सोएंगे। अल्लाह ने कहा कि वो बेहतरीन नींद को छोड़ो अल्लाह के लिए, ताकि तुमको बेहतरीन जगह जन्नत मिल जाए। मेहनत करना होगा। हम लोग दुनिया के अंदर कोई कामयाबी हासिल करते कितना खटते हैं, उस कामयाबी के कितना मेहनत करते हैं, तब जाकर वो कामयाबी हमारे कदम को चुनती है। तो ये तो आखिरत की बात है, इसीलिए शिकार के बारे में मैंने इस्तेमाल किया। आगे अल्लाह ने कहा लियालमल्लाहु मन यखाफुहु बिल गैब, ताकि अल्लाह जान ले कि कौन अल्लाह से बिन देखे डरता है। शिकार को अल्लाह ने क्यों हराम किया? अल्लाह ने शिकार को इसलिए हराम किया हालत इहराम में, ताकि अल्लाह तबारक व तआला जान ले कि बिन देखे, बिल गैब मतलब उसको बगैर देखे कौन डर रहा है। नहीं समझे? मतलब हम एक दुकान पे गए, कोई स्टोर पे जाते, कोई नहीं स्टोर पे, और पैसा बिल्कुल रखा हुआ है गले में, गले में पैसा रखा हुआ है, देखने वाला कोई नहीं, दुकानदार हम ही को दिखा के चले गए। क्या तो ध्यान दीजिएगा, हम देख रहे हैं कि पैसे की गड्डी रखी है। वो एक आजमाइश होगी उस शख्स की, उस मोमिन के लिए कि बिन देखे, अल्लाह तो वाली है, अल्लाह तो साथ अर्श पर मुस्तवी है, लेकिन वहां हमारी आजमाइश है कि हम अल्लाह को देख नहीं लेकिन डरेंगे, क्योंकि अल्लाह देख रहा है। हम डर के अल्लाह को देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह हमको देख रहा है। ये हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारा ईमान होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि लियालम अल्लाह, ताकि अल्लाह जान ले मैं यखाफु, कौन उससे डरता है, बिल गैब बगैर देखे, कौन उससे बगैर देखे बिन देखे डरता है। अब एक हाजी है, देखा सामने शिकार आ रहा है, शेर आ रहा है, और वो शिकार का शौकीन आदमी, अब देखा बेहतरीन मौका शिकार को, जा नहीं सकते क्यों, कर लेते हैं, कहाँ कोई देखने वाला है। अल्लाह ने कहा कि नहीं, हमें आपको लग रहा है कोई नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह हम सबको देख रहा है। ये अल्लाह यही तो जानना चाहता है, अल्लाह तबारक व तआला यही तो जानना चाहता है, कितना खौफ बचा कर रखा है। अल्लाह ने कहा फमनी तदा बाद ज़ालिका, ये तदा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हद से ज्यादा तजावुज करने के लिए, हद से ज्यादा आगे बढ़, ओवर एक्सेस, हद से ज्यादा आगे बढ़ जाना। फमनी तदा बाद ज़ालिका, अगर इसके बावजूद भी कोई हद से ज्यादा तजावुज करता है फलहु अज़ाबुन अलीम, तो उसके दर्दनाक अज़ाब। आप समझ रहे हैं? हुज्जाज के बारे में बयान हो रहा है, हुज्जाज मुसलमान होते हैं। मुसलमानों के बारे में कहा गया कि अगर हालत इहराम में वो शिकार करता है जानबूझकर, तो जानबूझकर शिकार करने पे कुछ कफारा है, लेकिन उसको आदत बना ले, इसीलिए अल्लाह ने हद से तजावुज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जैसे हम एक बार कोई गलती कर दी, चलो कोई बात नहीं, कोई बात कर दी, चलो कोई बात नहीं, हो गया। अब बार बार करे तो है ना, आधार कार्ड में अपडेट ऑफ बर्थ एक बार चेंज कर सकते हैं, हम एक बार किए, फिर 2 बार किए, फिर समझ जाएगा कोई मजाक कर रहा है, बस क्या बोलो कि कर देगा, ना रहेगा ना परेशान नहीं। उसी को अल्लाह ने फमनी तदा कहा। एक बार 2 बार समझ में आ रहा है, चलो हो गया, बार बार हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हद से तजावुज कर रहा है। अब ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह ने कहा कि फलहु अज़ाबुन अलीम, उसको दर्दनाक अज़ाब ऐसे होगी। सोचिए कि अगर ईमान की हालत में अल्लाह ने एक काम को मना किया, उसको बार बार करेंगे तो दर्दनाक अज़ाब है, तो कुफ्र में जाएंगे तो क्या होगा, अल्लाह ना करे, अंदाजा लगाए। उसके बाद आयत नंबर 95-95, अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़्तुलुस सैद व अंतुम हुरमुन, ऐ ईमान वालों तुम शिकार को कत्ल ना करो, अंतुम हुरम, जबकि तुम हालत इहराम। यहाँ पे कुछ क्लियर अल्लाह ने बता दिया, ऊपर वाली बात अल्लाह ने नीचे साफ सुथरी, व अंत हुरमुन ऊपर में इस्तेमाल नहीं था, कंफ्यूजन था कि कब शिकार नहीं करना है, क्यों अल्लाह आजमा रहा शिकार से। यहाँ अल्लाह ने कहा अंतुम हुरमुन, जबकि तुम हालत इहराम में हो। अब यहाँ देखिए, हाजी जब हज करने जाते हैं ना, तो आप देखते होंगे कि हर जगह हज तरबीती कैंप लगाया जाता है, ये बहुत जरूरी है। वजह है कि हम लोग को ऐसा माहौल नहीं है, मतलब कि बहुत ज्यादा हज उम्रा करने का माहौल नहीं है। अगर है भी तो कोई किसी को साझा नहीं करता, अगर साझा करता भी तो लोग मस्जिद से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। इस वजह से बहुत से अफराद को, यहाँ तक कि जो हज पे जा रहा है उसको नहीं पता क्या करना है, उसको सीखना पड़ता है जाने से पहले।
जबकि ये बच्चे बच्चे को मालूम होना चाहिए। जैसे इस्लाम के जो 5 अरकान उसमें से एक हज भी है, मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसको अल्लाह के रास्ते में जाने की ताकत दे उसके ऊपर हज फर्ज है। तो हज तरबियती कैंप लगाया जाता है। हज तरबियती कैंप तो आजकल फैशनेबल हो गया, वहाँ पे शो बढ़ जाता है, काम बहुत कम होता है। वहाँ शो ये होता है कि फला फला साहब जा रहे हैं हज को, खूब फोटो शॉप चल रहा है, ये उसके साथ खिंचा रहे, उसको माला पहना रहे, उसको गुलदस्ता दे रहे, इसी में तरबियती कैंप खत्म हो, तरबियती नहीं कैंप खत्म हो। लेकिन हज तरबियती कैंप में क्या होना चाहिए, ये चीजें बातें होनी चाहिए। तो देखिए आप हज को जा रहे हैं, आपको शिकार नहीं करना, आप शिकार नहीं कर सकते। हो सकता है बिना पहाड़ी पे जाए, कोई भेड़िया आ जाए, आप सोचे चलो मार देते हैं। अगर चुपचाप जा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप पर हमलावर है या खतरा है तो आप अपने आप को सेल्फ डिफेंस जो कहा था अपने आप को बचाइए। उसमें ये चीजें भी आती है, उलमा बताते हैं वो जांच को, क्या हज को जा रहे हैं तो आपके लिए शिकार हराम, आपके लिए बीवी से मुजामत हराम है। सारी चीजें क्यों बताई जाती है, क्योंकि अब आप एक नॉर्मल लाइफ नहीं रहे। तभी तो एक हाजी इतना रुपया खर्च कर रहा है, 7 लाख 8 लाख 10 लाख जो भी खर्च हो रहा है, अगर हम उसको शरीयत के सुन्नत के मुताबिक हाजी नहीं कर सकते तो क्या फायदा उतना खर्च करने का। हर आदमी की कोशिश होती है जब अल्लाह के रास्ते में अपनी मेहनत की और गाढ़े पसीने की, खून की, पैसे अल्लाह के रास्ते में हम लगा रहे तो अल्लाह उसको कबूल कर रहे हैं, मकसद तो हमारा यही रहता है। तो तरबियती कैंप में यही सब होता है। और देखिए उस तरबियती कैंप का एक नज़ारा आप देखिए कि जैसे ही वो हाजी निकलता है, जिस मुल्क से भी निकलता है, उसकी एक एक अपडेट आपको फेसबुक पे मिल जाएगी। आपको खुद ही जरूरत है कहाँ पे हो, खुद ही बता दें। कलकत्ता के हवाई अड्डे पर है, वहां से जिद्दा के हवाई अड्डे पे है, यहाँ तक फ्लाइट की सीढ़ी पर है तो उसकी फोटो आ रही है, उतर रहे हैं, स्लो मोशन में भी आता है आजकल उतरने का तरीका। फिर वहां पहुंच रहे हैं तो मस्जिद आयशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और ये देखिए हम लोग बैठे हुए मस्जिद नबवी के अंदर, टोटल अपडेट आपको पता रहेगा। उतना हज कमेटी इंडिया को नहीं पता रहेगा उसके बारे में। अब देख ले क्या मतलब मामला बने हुए हैं। क्या वजह है, तरबियती कैंप के अंदर ये चीजें नहीं बताई जाती कि आप रिया से बचिए। रिया कितनी खतरनाक चीज है कि आपको आपके सारे अमल बर्बाद कर देंगे। यहाँ तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में कहा रिया अशिर्क, रिया शिर्क है। क्यों शिर्क है, क्योंकि हज की इबादत जो अल्लाह को दिखाना है, हम दुनिया को दिखा रहे हैं, अल्लाह के बराबर किसी को ला रहे हैं, तो ये चीजें नहीं होती। अब देखिए यहाँ अल्लाह ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से कह रहे हैं अल्लाह ताला, ला तक़तुलुस सैदा, तुम शिकार को कत्ल ना करो, ला तक़तुलुस सैदा, शिकार को कत्ल ना करो, व अंतुम हुरुम, जबकि तुम हालत इहराम में। ये एक बहुत बड़ा मसला है हज के लिए। अल्लाह हम सबको हज की तौफीक दे, हमें भी मसला पता होना चाहिए। आमीन रब्बल आलमीन। अब कोई अगर क्या करे, शिकार कर दे, अल्लाह ने कहा मन कतलहु मिनकुम, तुम में से कोई उसको कत्ल कर दे, मुतअम्मिदन, जानबूझकर, मुतअम्मिदन जानबूझकर कोई उसको कत्ल कर दे। अब इस आयत के टुकड़े पर मुफस्सिरीन के दरमियान बहुत बहस है, और लगभग सारी मुफस्सिरीन ने कहा है कि अगर भूल कर जो कत्ल करता है तो उसको जानबूझकर कहा जाएगा। सोचिए एक हाजी है, उसको नहीं पता था, वो गया कत्ल कर दिया, शिकार सामने मार दिया। मुफस्सिरीन ने कहा कि उसको भी जानबूझ की कैटेगरी में लाना होगा। तुमने क्यों नहीं सीखा, तुमने, हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो तरीका नहीं सीखेंगे हम, ये कहने से काम चल जाएगा कि हमको मालूम नहीं है नमाज में, नहीं, सीखना होगा। बेसिकली कहा जाए तो आप जाइए नमाज में, जमात में शामिल होइए, वो अलग अलग चीज है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। कोई रुकू टोकेगा आपको, देखिए भैया आप नियत सही से नहीं मान पा रहे हैं, आपका रुकू सही नहीं हो रहा, आपका सज्जा सही हो रहा है, इसका मतलब आपको सीखना होगा, इबादत ना है तो आपको सीखना होगा। ये कहने से नहीं होगा कि हम तो कर ही रहे। तो मुफस्सिर ने कहा कि कोई अगर भूल से भी मार देता है तो उसको जानबूझ को ही माना जाएगा। इतना सब मतलब मुफस्सिर ने कहा कि इसीलिए अल्लाह ने कहा कि वमन क़तलहु मिनकुम मुतअम्मिदन, तुम में से कोई अगर जानबूझ कर उसको कत्ल कर दे, फजज़ाउ मिस्लु मा क़तल मिनन नाई, जिस जानवर को हम कत्ल कर रहे हैं उसी के मिस्ल जानवर जो है हमको बदले में देना होगा। जैसे हम गाय को मारते हैं शिकार में, तो उसके मिस्ल नील गाय आता है, मिस्ल मतलब उस जैसा, जिसको हम शक्ल भी तर्जुमा कर सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि जो देखने में आपस में सिमिलरिटी पाई जाती हो, एक ही जैसे लगते हो। तो गाय है तो उसकी जगह नील गाय, अल्लाह ने कहा उस जैसा जो है फिदिये में देना होगा। यह तुम भी ज़वा अदल मिनकुम, तुम में से कोई 2 मोतबर आदमी इसका फैसला कर दे। जैसे किसी ने मारा, मामला काजी वक्त के पास जाएगा, काजी वक्त कहेंगे कि ठीक है ऐसी बात है तो गवाह लाओ, इसने किया है, गवाह आ जाएंगे, या खुद ही एक्सेप्ट कर ले तो गवाह की जरूरत नहीं है, ना करे तो गवाह चले जाए। तो मोतबर कहा गया, इस पर एतबार किया जा सकता है।
अदल का जवा अदल, जिनके अंदर अदल इंसाफ हो, वो कहते तो क्या होगा, उनको उसी जैसा एक फिदिया देना होगा। अब फिदिया के बारे में जान लें। वो फिदिया, कुछ लोग ऐसा एक मसला आया था कि वहां वो गलती कर दी है, तो उन्होंने यहाँ कहा अपने मुल्क में कि एक जानवर जबा कर दीजिए, ये सही नहीं। तो फिदिया वहीं देगा, देना होगा खाने काबा में, मतलब जो हुदूद हरम है वहीं पर देना होगा, और कहीं नहीं, बाहर नहीं दे सकते। तो फिदिया, अगर उस हाजी के पास पैसा नहीं तो एक अलग मसला है, उसके लिए भी और रास्ते हैं, लेकिन जिसके पास है उसको वो फिदिया, वो जानवर उसी शहर मक्का में देना होगा, कहीं और नहीं हो सकता, उसी शहर मक्का में। तो अल्लाह ने कहा कि उस जैसा एक मिस्र जानवर देना होगा जिसको दो मोतबर शख्स फैसला कर दिया, अदल कर दे तुम में से। हदियम बालिगन, या हदी कहते हैं वो जानवर जो हज के मौके पर हाजी कुर्बानी के लिए जाते हैं, उसको हदी कहा जाता है उस जानवर को। अल्लाह ने कहा कि हदियम बालिगल काबा, बालिग बोलते हैं पहुंचाने के मतलब, वमा अलैना इल्लल बलाग, नबी आपके ऊपर नहीं मगर पहुंचाना, बलाग मतलब पहुंचाना, और एक अल बलाग मुजल्ला भी निकला था, मतलब पहुंचाना तो कहते हैं। हदियम बालिगल काबा, कहां पहुंचाया जाएगा, काबा में, यानी हुदूद हरम में, वो जानवर हुदूद हरम में पहुंचाया जाएगा। और कफ्फार तो ताम मसाकीन, या जो कफ्फारा बन रहा है वो वहीं के मिस्कीनों को खिलाया जाएगा। खाने काबा जो मक्के के जो मिस्कीन है, वहां के मिस्कीनों को वो कफारा खिलाया जाएगा। और अदल ज़ालिका सियामन, या उसकी बराबरी में रोजा रखा जाएगा। मुफस्सिर ने इस आयत के शरह में लिखा है कि 6 मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा। अगर वो हदी नहीं मिला, जानवर ना मिले उस जैसा, तो उस जैसा जानवर अगर ना मिला तो आप क्या करें, फिदिये में वहां के खाने काबा के जो 6 मिस्कीन है। अब लोग कहते हैं कि सऊदी में कोई गरीब नहीं, तो अरे इंडियन पाकिस्तान है ना वहां पे, और लोग तुम्हारे रहते हैं ना, तो फिलहाल तो वहीं रह रहे हैं, तो मक्का ही कहोगे, उनकी जरूरत है खाने पीने की, तो 6 मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा। और 3, अगर खाना ना खिलाने की ताकत हो 3 दिन का रोजा रखना होगा। ये जो है फिदिया है, कि अगर कोई शिकार जानबूझकर कर दे या अनजान बेगर जानबूझ के। लीजू का उबाला अमर, ये इसलिए कि उनकी वो करतूत है ताकि तुम उसका मजा चखो। जाके यजू का मतलब होता है मजा चखना, उसी से जायका आता है। ये उनके अम्र का, उनके फेर का ये नाम है कि तुम उसका मजा चखो। अफल्लाहु अम्मा सलफ, और जो कुछ गुजर गया, आदमी उस पर अमल किया तो अल्लाह उसको माफ कर देगा, दरगुजर कर देगा। वमन आदा, और अगर कोई सोचे नहीं हम करते रहेंगे, आदा यहूद मतलब लौटना, उसी से आता है ईद। ईद का मतलब ही होता है लौट कर आना, बार बार। अल्लाह ने कहा वमन आदा, अगर कोई बार बार गलती कर रहा है, फयंतकिमुल्लाहु मिनहु, तो उससे अल्लाह इंतकाम लेगा। अगर कोई जानबूझ के ऐसा कर रहा है, होता है ना, बहुत से लोग हज को गए तो सोचे कि चलो शिकार पर करते हैं, इसका एक वीडियो भी बना जाएगा। आज के जमाने तो खासकर खतरा है इन चीजों का, कोई शिकार का वीडियो बनाते हैं, ऐसा करते हैं। अल्लाह ने कहा अगर कोई जानबूझ के ऐसा कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो अल्लाह उससे इंतकाम लेगा। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतकाम, और अल्लाह बहुत बड़ा इंतकाम लेने वाला है। अल्लाह जब इंतकाम ले तो समझे कि इंसान की हालत क्या होगी, इंसान का अंजाम क्या होगा। अब उसके बाद खाने पीने ही की चीज के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 96 के अंदर, यानी 96 के अंदर बयान किया। अल्लाह ने कहा उहिल्ला लकुम सैदुल बहर व तआमुहु, तुम्हारे लिए समंदर का शिकार और उसका खाना हलाल किया गया है। अहल्ला युहिल्लु का मतलब होता है हलाल किया गया है। सैदुल बहर मतलब पानी के अंदर जो जानवर जिंदा हो, जैसे मछली जिंदा पकड़ी है जो खाने वाली है। वतामु मतलब मुर्दा, मछली एक ऐसी चीज है जो जिंदा मुर्दा दोनों खा सकते हैं, है ना, जानवर भी नहीं, मछली की जो पानी की जो चीजें। अल्लाह कह रहा है उहिल्ला लकुम सैदुल बहर व तआमुहु, समंदर के अंदर जो मछलियां है उसकी किस्में हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी मछली, शार्क मछली है, डॉल्फिन तो क्या है, जितनी भी मछलियां हैं, जिंदा अगर पकड़ लिया जाए तो भी हलाल है, और मुर्दा पकड़ लिया जाए तो भी हलाल है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम उसका समंदर का मुर्दार भी खा सकते हैं। इसलिए कि मताअन लकुम, तुम्हारे फायदे उठाने के लिए। आप देखिए आज भी समंदर में बड़ी बड़ी कश्तियां दौड़ती हैं कंटेनर लेकर, और बड़े लंबे लंबे सफर होते हैं, हिंदुस्तान से अमेरिका, वहां से यूरोप, कहां से जाते हैं। वो लोग क्या खाएंगे, आप कितना भी खाना लोड कर ले, आपका इतना लंबा सफर रहता है कि खाना काफी हो जाता है, और सबके बस की बात नहीं उतना खाने लेके चढ़ जाए। तो लोग क्या करते, मछलियां पकड़ पकड़ के खाते। ये बात अल्लाह ने आज से 14 साल पहले बयान कर दिया, यानी उस जमाने में ऐसा ही होता था। लोग कश्तियों पर सवार होकर दूर दराज सफर को जाते थे, और बीच में क्या होता था, खाने पीने की चीजें होती थी तो उसको खाते थे, मछलियां पकड़ते थे और उसको खा लेते थे।
تو اللہ نے کہا کہ چیزیں سمندر کی اس لیے حلال کی گئی ہے متاع لکم، تمہارے فائدے اٹھانے کے لیے. کتنا اللہ نے ہم لوگوں کا خیال رکھا کہ اگر ہم خشکی سے بری سے بحری میں چلے جائیں وہاں بھی اللہ نے ہمارے انتظام کر رکھا ہے. اسی لیے اللہ نے کسی چیز کو بلا مقصد نہیں پیدا کیا. ہم کہتے ہیں نا کہ سمندر ہے، کیا ضرورت اتنا بڑا سمندر، اتنی بڑی مچھلیاں کیا ضرورت، وہ ہمارے لیے ہے، وہ ہم لوگوں کے لیے ہے. سمندر میں کشتیاں دوڑتی ہیں، تجری فی الفلک کا الگ آیا ہے قرآن کے اندر کی بڑی بڑی کشتیاں دوڑتی ہیں سمندر کے اندر. اب دیکھیں آج کے زمانے میں میپنگ ہے، اس زمانے میں کیسے لوگ سفر کیا کرتے ہیں کہ ایک بار سمندر میں کشتی کو چھوڑے، اب ان کو یہاں سے سعودی سے یمن جانا ہے، یہاں وہاں سے عراق، کیسے لوگ جاتے ہیں. اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی لیکن لوگ پہنچتے تھے، پہنچ جاتے تھے. تو اللہ نے سمندر کے اندر جو جانور ہے اس کو حلال کیا ہے، چاہے زندہ پکڑا جائے چاہے مردہ پکڑا جائے، اللہ نے اس کو حلال کیا ہے. متاع لکم، تمہارے فائدہ اٹھانے کے لیے، وللسیارۃ، تمہاری سفری مشقت کے لیے، سفر کے لیے جو تم سفر کرو اس کے اندر اس چیز کے لیے بھی ہے. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور تمہارے اوپر خشکی کا، زمین کا شکار حرام کیا گیا ہے ما دمتم حرما، جب تک تم حالت احرام میں. پھر اللہ نے ریپیٹ کر دیا. اب ریپیٹ کا مطلب سمجھیے کہ اللہ بار بار کیوں بیان کر رہے ہیں کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو تم شکار نہیں کر سکتے، حالت احرام میں ہو تو تمہارے لیے حرام ہے، تاکہ ہر حجاج کو یہ مسئلہ پتا رہے، غلطی سے بھی غلطی نہ ہو. پھر اللہ نے یہی بات بیان کر دیا. اس کا مطلب ایک اور بات ہو، پہلے سمندری راستے سے لوگ حج کو جاتے تھے احرام باندھ کر، تو وہ شکار نہیں کر سکتے. اور جو ملہ وغیرہ ہیں جس کو ناخدا کہا جاتا ہے، جو ان کی ٹیم ہوتی ہے وہ کرے اپنا، جو حج کے لیے نہیں جا رہے وہ تو سواری پیسنجر کو لے کے جا رہے ہیں. اس حالت میں اللہ نے کہا کہ اگر کشتیوں سے جا رہے ہو تو ذکر اذکار میں لگے رہو، اس کام پر دھیان نہیں دینا ہے. اتنا بڑا معاملہ ہے حج کا. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ رب العالمین سے ڈرو جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ. اللہ نے کہا کہ سب کے سب تم کہاں لوٹائے جاؤ گے؟ اللہ کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. یہ بھی ایک بڑی بہترین بات اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ ہمیں اپنے منزل کے بارے میں خبر ہے. ہم مرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ اللہ کے دربار میں جائیں گے. تو جب پتہ ہے کہ ہمارا انت، ہمارا خاتمہ اور ہماری حاضری اللہ کے ہوگی مرنے کے بعد، تو کتنا بھاگے اللہ سے، کیوں اس کی نافرمانی کریں، کیوں اس کو ناراض کریں، کیوں اس کو خوش نہ رکھیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کو راضی اس لیے کرے کہ سامنا اللہ سے کرنا ہے، اس کے حضور ہم لوگوں کو حاضر ہونا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ سب کام نہ کرنا، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کام نہ کرنا کیونکہ لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، وہی جمع کیے جائیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 97 اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ اور جو حدود حرم ہے، جو اصل میں خانہ کعبہ کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حرمت سے ہے، اس میں جنگ و جدال نہیں کر سکتے، حرام ہے. اس ایریا میں شکار نہیں کر سکتے، حرام ہے. ظلم نہیں کر سکتے، حرام ہے. اسی لیے اس کو حرم کہا جاتا ہے. اور ایک اور حرم ہے مسجد نبوی، ان دونوں کو حرمین شریفین کہا جاتا ہے، دونوں کو، خانہ کعبہ کو اور مسجد نبوی کو. مکہ مدینہ کو نہیں. لوگ مکہ بہت بڑا شہر ہے، مدینہ بہت بڑا شہر ہے. یہ جو جگہ ہے آپ جائیں گے، جو لوگ حج عمرہ کیے ہوں گے، تو جیسے وہ انٹر کرتے ہیں بڑا سا گیٹ آ جاتا ہے، قرآن کا ٹائپ کا رہتا ہے، آپ یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں. یعنی آپ حدود حرم میں جا رہے ہیں، حرم کے حدود میں جا رہے ہیں. اب یہاں پہ یہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام، اللہ رب العالمین نے کعبہ کو ایسا گھر بنایا جو حرمت والا ہے، قیاما للناس، لوگوں کے قیام کے لیے ہے. اللہ نے خانہ کعبہ کی جو اللہ نے عزت جو بتائی ہے وہ شروع سے ہی بیان کی ہے. خانہ کعبہ کی جو مقام ہے، جو عزت ہے، اللہ تعالیٰ نے شروع سے، آج سے نہیں، شروع سے اس کا مقام واضح ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ بہت نامی گرامی شہر مانا جاتا ہے، ایک زمانے سے مانا جاتا ہے، آج نہیں، شروع سے. اللہ نے آگے کہا والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے. اب جانتے ہیں کہ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو جن مہینوں کے بارے میں بیان کیا، حرمت والے مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ. 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے، جو بھی رجب کا مہینہ گزرا، ابھی شعبان میں ہم لوگ آ گئے. حرمت کا مطلب کہ اس میں ہم لوگوں کی جدال نہیں کر سکتے، قتال نہیں کر سکتے، ظلم نہیں کر سکتے. ایسے تو ہم کسی مہینے میں نہیں کر سکتے، لیکن اس مہینے میں خاص کر، جیسے عام دن میں ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، کچھ فرق ہو جاتا ہے.
उस महीने की जो बरकत जो आम दिनों के वक्त दोनों फर्क है। उसी तरीके से हुर्मत वाले महीनों के बारे में भी अल्लाह ने कहा। फिर आगे अल्लाह ने कहा वल हदी, और हदी उसी कहते हैं जो जानवर हाजी कुर्बानी के लिए ले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हदी बोलते हैं। और हदी की हुर्मत, अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाअल्लाह दोबारा दर्स को शुरू किया जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वल हदी, और कुर्बानी का जानवर भी हुर्मत वाला है, वल कलाइद, और जिन जानवर पर पट्टे लगे, ज़ालिका लितालमु अन्नल्लाह यालमु, इसलिए ताकि तुम जान लो। अल्लाह ने कहा ये चीजों को क्यों अल्लाह ने हुर्मत वाला करार दिया? एक तो हुर्मत वाले महीने, एक तो मस्जिद हराम। क्यों अल्लाह ने कहा? ताकि तुम जान लो कि अन्नल्लाह यालमु, बेशक अल्लाह ताला जानता है, मा फिस समावाति मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों और जमीनों में है। तो अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज का जानने वाला है। यहाँ देखिए एक बहुत बड़ा मसला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया। अब जैसे बहुत सी चीजों को देखकर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर क्यों ऐसा है ना? आखिर ऐसा क्यों? जैसे रमजान का रोजा, काफी गर्मी पड़ती है, हम लोग रहते हैं, हर रोजा है, कोई ये उज्र भी नहीं बोल सकते कि गर्मी है तो नहीं रखेंगे। अगर ऐसा उज्र साबित हो जाए, सही हो जाए, तो लगता है 90% मुसलमान रोजा नहीं रखते, लेकिन ये उज्र नहीं है, ये शरई उज्र नहीं है। फिर भी जहन में बात आता है क्या इसकी मतलब फवायद है, क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना डिफिकल्ट कर दिया, इतना मुश्किल कर दिया? तो कुछ चीजें ऐसी है जिसमें इंसानी अकल को अल्लाह ने बतलाया, बहुत सी चीजों को अल्लाह ने बतलाया ही नहीं। इसीलिए इंसान का जो इल्म है वो नामुकम्मल है। अल्लाह कौन है? अल्लाह ताला, अल्लाह मुकम्मल इल्म वाला है, अल्लाह ही के पास मुकम्मल इल्म है, इंसान के पास नहीं। वही बात अल्लाह ने कहा ज़ालिका, ये इसलिए है लितालमु, ताकि तुम जान लो। क्या जानना है हमको? अन्नल्लाह यालमु मा फिस समावाति मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में, अल्लाह जानता है। इसका इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास है। अल्लाह ने इंसान को एक महदूद अकल दिया है। आज महदूद अकल के फवायद देख ले। अगर कोई इकोनॉमिस्ट है तो बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, वो क्या कर रहा है कि मुआशी हालत को ठीक कर दे रहा है। अगर कोई हुकूमत का माहिर है तो हुकूमत ठीक कर दे रहा है। कितने काबिल काबिल लोग दुनिया के अंदर हैं, और ये महदूद इल्म है। तब सोचे कि अल्लाह का इल्म क्या होगा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या जानता हो, उसकी इल्म क्या होंगे। पैसा देखा जाए तो एक से एक पैसे दुनिया के अंदर है, जबकि अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं। वो उन पैसे वालों को देने के बाद कमी नहीं होता, अल्लाह के खजाने कैसे होंगे? ये बात अल्लाह ने बात बयान की, बहुत बड़ी बात बयान की कि कोई जरूरी नहीं कि इंसानी अकल हर चीज को जान जाए। इंसानी अकल, एक बच्चा माँ के पेट में 9 महीने रह रहा है, उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, सोच रहे आप? उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, खुराक मिल रहा है, माँ खा रही तो बच्चा भी खा रहा है। माँ सेहतमंद है तो बच्चा भी सेहतमंद है। वो बिल्कुल पेट के अंदर है, बाहर की कोई चीज को नहीं मिल रही, फिर भी वो जिंदा है। कैसे? डॉक्टर फोटो करे तो बता रहा है क्या हरकत कर रहा है, कैसे कैसे वो जिंदा निकल जा रहा है अपनी माँ के पेट से। सोचने वाली बात है। अगर गौर करे तो एक ईमान वाला ईमान और मजबूत हो जाएगा कि अल्लाह की जात और कुदरत कैसी है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि ताकि तुम जान लो कि जो कुछ आसमानों और जमीनों में है, यालमु, वही जानता है। अन्नल्लाह यालमु, अल्लाह ही बेशक जानता है, और कोई नहीं जानता। वह अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। एक चीज नहीं, हर चीज। आप कोई भी टॉपिक उठा लें, दुनिया की कोई भी चीज उठा लें, बड़े बड़े पहाड़ों को आज हम देखते हैं, जंगलात में पहाड़ है। क्यों है पहाड़? इसके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा कि अल्लाह ने जमीन के बैलेंस को बनाने के लिए पहाड़ को खूंटे के तौर पे गाड़ दिया। ये खूंटा है, पहाड़ नहीं है। अगर पहाड़ खत्म हो जाए ना तो समझिए जमीन में जलजले आने लग जाएंगे, हिलने लगेगा और जमीन का बैलेंस बिगड़ जाएगा। ये पहाड़ को अल्लाह ने इसलिए बनाया है। इसीलिए जहां बहुत ज्यादा पहाड़ों कटाई होती है उसके लिए भी कानून है कि आप इससे ज्यादा कटाई नहीं कर सकते। कानून बना हुआ है, कितना काट सकते, जो बड़ा हुआ है काट सकते, उससे ज्यादा नहीं काट सकते, वरना जमीन का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अल्लाह ने जमीन को फर्श नुमा बिछाया, तो फर्श ये है, तो ये अगर पाया ना तो उठा पटक हो जाएगा। इसको थाम के रखा हुआ है, अल्लाह ने ऊपर से गाड़ दिया कील के तौर पर जमीन को, अब वो नहीं हिलेगा। अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ने कहा कि वह अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज का जानने वाला। किसी भी चीज के बारे में देख रहे, अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। आज के दौर में हम फ्लाइट्स को देखते हैं, जहाज को देखते हैं, अपने एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है, फिर लैंड करता है, तो हम देख के बड़े ताज्जुब का इजहार करते हैं, कितना हाई वेटेड प्लेन जो है सामान को लेकर, पार्सल को लेकर, इंसान को लेकर आसमानों में उड़ रहा है। ये भी इंसान के एक इल्म है, दिमाग है, जो अल्लाह के थोड़ा सा दिमाग इंसान को दिया। इंसान ने क्या कर दिया? आसमान में जहाज उड़ा दिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुर्राक को अल्लाह के रसूल से को दिया, और उड़ाकर कहाँ ले गए उस जमाने में? बैतुल मुकद्दस, खाने काबा से। एक सवारी अल्लाह ने दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में।
पलक झपकते हो मक्का से कहाँ चले गए, बैतुल मक्का से, फिर आसमानों के ऊपर जहाँ तक अल्लाह ने चाहा। तो इंसान को ये बात पता होनी चाहिए कि सब मुकम्मल इल्म किसी भी इंसान के पास नहीं है। कोई भी इंसान मुकम्मल इल्म वाला नहीं है। मुकम्मल इल्म वाला सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और कोई नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने कहा ना कि एक मोमिन की एक शान होनी चाहिए कि जब हम में से किसी को कोई कामयाबी मिल जाए, मसलन किसी को औलाद हो जाए, एक बड़ी खुशी का मकाम है कि अल्लाह ने हमके औलाद जैसी नेमत से नवाजा, तो उसका श्रेय जो है किसको दे हम? अल्लाह। या अल्लाह तूने अता किया है, ये तेरे वजह से हुआ, तूने चाहा तो हमको औलाद मिली, तो ना चाहते तो नहीं मिलती, चाहे जितनी हमारी कोशिशें हो। एक आदमी दुनिया में कामयाब हो गया, शोहरत में, इज्जत में, पैसे में, दौलत में, प्रॉपर्टी में, तो ये सारा क्रेडिट अल्लाह को जाए कि अल्लाह तेरा दिया हुआ है, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, तूने अता किया, मुझे मिल गया, तू चाहे तो छीन भी सकता है। ये कभी भी अल्फाज का चुनाव खासकर अपने उरूज पर याद रखे। आज जितने लोग सवाल में है ना, वो कुछ ना कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जिनको पता ही नहीं। इस पर भी बहस होनी चाहिए, लोगों को इल्म होना चाहिए कि हमें क्या बोलना है। अक्सर क्या होता है कि इंसान उरूज पर जाता है, तो उरूज एक ऐसी चीज है ना जिसके अंदर बड़ी करंट होती है, वो जैसे इंसान कुछ जोड़ देता है। अब उसकी बोली, उसके चाल चलन, उसके बदलाव में चलने में बहुत बदलाव आ जाता है। अरे हमारे पास तो ये है, वो कुछ नहीं, तो इस चीजों से बचनी चाहिए। अल्लाह ने सहाबा को क्या नहीं दिया? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और जुबैर बिन अव्वाम वो बड़े बड़े रईस लोग थे, लेकिन उनके अखलाक देखे कि उनको देख कर लगता था कि इनसे बड़ा गरीब कोई नहीं। वो चीजें, नेगेटिव चीज अपने बदन पर, अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में उन्होंने कभी आने नहीं दिया। इसीलिए अल्लाह जब कामयाबी देना, जैसे मान लीजिए कि आज 1 तारीख हमको तनख्वाह मिल गई, हमारे पास एक रकम आ गया, या अल्लाह तेरा दिया हुआ है, मेरे तो कोई क्वालिटी नहीं, ये मैंने नहीं कमाया है, कितना भी क्वालिटी मेरे अंदर होगा, अगर तू ना दे तो कोई दे नहीं सकता। तो अल्लाह को अंदाज बहुत पसंद आता है कि बंदा अपनी कामयाबी को हमारे तरफ भेज रहा है। हकीकत में अल्लाह ने कामयाब किया तो अल्लाह इस चीज से खुश होता है। कोई हम मकाम मिल गया, अल्लाह तेरी वजह से, सिर्फ तूने अता किया। और जब अल्लाह उम्मीद दे ना, तो भी याद रखें कि अल्लाह से हमेशा दुआ करें कि अल्लाह में किब्र से बचा, अल्लाह तकब्बुर से बचा, हमेशा दुआ करें, क्योंकि उरूज से जवाल होने में वक्त नहीं लगता। अल्लाह हम सबको कामयाबी से हम किरार करें, आमीन। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 98 के अंदर बयान किया, इल्मु, जान लो। अल्लाह ने यहाँ पे अम्र का सेगा इस्तेमाल किया, हुक्म के मानो जानो। क्या जान लेना है? अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, कि बेशक अल्लाह ताला सख्त से सख्त अजाब देने वाला है, व अन्नल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला भी है, मेहरबान है। दोनों चीज अल्लाह ने बयान किया। ये छोटी सी आयत में इतना बड़ा मैसेज अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को, मोमिनों को दिया है कि हम अक्सर अल्लाह की एक सिफत को लेके चलते हैं। मसलन हम गुनाह ये सोच के कर देते हैं अल्लाह गफूर रहीम, चलो अल्लाह माफ कर देगा, हल्के में ले लेते हैं और ये सोच के चल रहे हैं। अल्लाह कह रहा है कि एक पहलू क्यों सोचते हैं? अन्नल्लाह शद्दुल इक़ाब, अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला भी तो है। अगर यही चीज हमको याद रहे तो भी गुनाह नहीं करे तो कर रहे हैं। तो एक चीज को हम टारगेट करते हैं कि अल्लाह गफ्फार है, गफूर है, रहीम है, रहमान है, ये सोचकर हम गुनाह कर जाते हैं। लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि अल्लाह अजाब देने वाला भी है। अगर नहीं होता तो अल्लाह यहाँ बयान कभी नहीं करता। अल्लाह ने दोनों पहलुओं को एक साथ बयान, ये कुरान की पहली आयत है जिसमें दोनों चीज एक साथ बयान की गई है, इसलिए कि हम नेकी करे तो हम समझे कि गफूर रहीम अल्लाह माफ कर देगा, गुनाह करे तो ये समझे कि अल्लाह बख्शेगा नहीं, पकड़ लेगा। ये चीजें हमारे ज़हन में होनी चाहिए। आज का दर्स यहीं पर मुकम्मल हुआ। सूरह माइदा आयत नंबर 98। अगर कोई सवाल हो ऑनलाइन ऑफलाइन तो आप लोग पूछ सकते हैं। इन सब नमाज में सजदा सहू किन किन चीजों में वाजिब हो जाता है और उसका तरीका? देखिए सवाल ये कि सजदा सहू का मसला क्या है। सजदा सहू असल में सहू का माना होता है भूल चूक, और भूल चूक पर एक सजदा किया जाता है, उसी को सजदा सहू कहा जाता है। जैसे अरबी के अंदर, उर्दू में इस्तेमाल सहमत भी काम कर ले, भूल चूक से कोई काम कर ले। नमाज में सवाल ये कि सजदा सहू कब कब करना है, यानी किस सूरत में सजदा सहू जरूरी हो जाएगा, कौन सी चीजें होगी। तो जो अरकान है नमाज की, मेन अरकान सो कहा जाता है, जैसे क़याम है, रुकू है, सुजूद है, तशहुद है, ये नमाज के मेन अरकान है। सलाम फेरना हुआ सलाम का तस्लीम कहा जाता है। ये चीजें अगर छूट जाए तो इस सूरत में हमको क्या करना है? सजदा सहू करना है। जो चीजें अरकान में शामिल, जैसे कि कुरान की किरत, हम कुरान पढ़ रहे हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद भूल गए, कुल हुवल्लाहु अहद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल lahu कुफुवन अहद, रुकू में चले याद है जब अल्लाहु समद भूल गए, तो उस पर सजदा नहीं करना, क्योंकि आप कुरान पढ़ना कहा गया है लेकिन वो रुकन के तौर पे नहीं है। जो भी पढ़ लेंगे आप वो काफी हो जाएगा। तो
तिलावत में किरत में जो चीजें भूल जा रहे हैं उस पर सजदा सहू नहीं है। सजदा सहू है मेन रुकन के ऊपर, कि जिसको किए बगैर नमाज का जो एक सिलसिला टूट जाएगा। जैसे एक रकत की हम बात करते हैं तो पहले तकबीर तहरीमा करेंगे, उसके बाद हम रुकू करेंगे, उसके बाद सजदा करेंगे। अब इसमें कुछ चीज छूट जाए, 2 सजदा एक ही सजदा कर ले, रुकू करना ही भूल जाए डायरेक्ट सजदा में चले जाए, तशहुद करना भूल जाए, 2 रकत तीसरी रकत में खड़े हो जाए, है ना, 4 रकत की नमाज है, ईशा की नमाज है, जोहर के असर की है, तो अब 2 रकत पे बैठना, खड़े हो गए, तो ऐसी सूरत में हमको सजदा सहू करना होगा। अगर सलाम फेर भी दिया याद नहीं रहा तो फिर सजदा सहू करके सलाम फेर देंगे, लेकिन करना है। हमने नमाज में ठीक कर दिए तो मतलब कि सजदा डबल करना था, खड़ा होके फिर दोबारा बैठ नहीं अब उस ऐसे नहीं करना, आप तो भूल गए तो भूल गए, अच्छा आप अपना पूरा कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा ना, पीछे जो मुक्तदी है अकेले तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैं अकेले हाँ अकेले तो कर सकते, कोई दिक्कत हमसे नहीं। उसका तरीका क्या है किसको सजदा सहू करने का? सलाम से पहले सजदा- सलाम का बाद। सजदा सहू का तरीका दोनों है, सलाम के बाद भी कर सकते हैं, सलाम के पहले भी कर सकते हैं, लेकिन इस फिर सलाम फिर नहीं होगा, 2 सलाम हो और जाएगा। होता है वहाँ से हमें लोगों का होता है कि वो तैयार पढ़ करके वो फिर एक सलाम कहते हैं फिर सजदे में जाते नहीं हैं। नहीं, देखिए उसका तरीका ये है कि सजदा सहू जो है ना, 2 सजदा करते हैं, जैसे आम नमाजों में करते हैं रकात में, तो तहियात पढ़ेंगे आखिरी रकत में, सजदा सहू का जो टाइमिंग है आखिरी रकत में जाए, जहां गलती होगी, पहली में गलती हुई है कि दूसरी में तीसरी में, वो मैटर नहीं है। सजदा सहू का एक वक्त है, एक जगह है अपनी, वो जगह क्या है, आखिरी रकत की तशहुद में बैठेंगे, जैसे बैठते हैं नॉर्मली, सलाम फेरने से पहले कर देना है। जैसे ही इमाम या हम सलाम फेरते हैं, सलाम फेरने से पहले हमको 2 सजदा कर देना है, करके सलाम फेर देना है। एक ये तरीका है, और बात रिवायत के अंदर आता है कि आप सलाम के बाद भी सजदा सहू करके फिर सलाम फेर दीजिए, हो जाएगा। दोनों तरीका है, लेकिन हम शॉर्ट में बता दिए, आखिरी रकत में सलाम फेरने से पहले 2 सजदा सब कुछ कर पढ़ने के बाद हम सलाम फेरने से पहले मतलब कुछ बचा ही नहीं है, सलाम ही है। जितना आपका पढ़ना पढ़ लीजिए, तहियात वगैरह जो दुआएं मासूरा पढ़ लीजिए, जब सलाम फेरने जाएंगे उससे पहले करें सजदा सहू। हाँ सर कभी कभी होता है कि मतलब 3 रकत पढ़े या 4 रकत पढ़े समझ में नहीं आता है, तो उसमें देखिए सवाल भी अच्छा है कि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि याद ही नहीं रहता है कि 3 में है कि 4 में है, तो हदीस के अंदर है कि कोई एक चीज को पकड़ लीजिए। अगर 3 को पकड़ लेना है तो आप सजदा सहू करके सलाम करना है, या हम सही पकड़ के चले कि नहीं कोई गलती नहीं हुआ, चलिए उसी तरीके से अल्लाह भूल चूक को माफ कर देता है। इमाम साहब ऑनलाइन एक सवाल है कि अगर रुकू में दुआ नहीं पढ़ पाए तब या भूल गए तस्बीह रुकू की, तो क्या देखिए दुआ रुकू कर किए लेकिन दुआ भूल गए तो इस पे सजदा सहू नहीं होगा, क्योंकि आपने रुकू का अमल किया, दुआ जो है पढ़ना वो भूल गए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं, उस पर सजदा सहू नहीं होगा। जब हम लोग कुरान पढ़ते हैं तिलावत करते हैं तो उसमें सजदा आता है, तो उसमें कई दफा उसमें लोग सजदा करते हैं, तो उसकी क्या शरीयत है? नमाज क्या नहीं जब कुरान की तिलावत के हालत में जब सजदा आता है और उसको देखिए जो कुरान की तिलावत में जो सजदा आता है तो सजदा तिलावत कहते हैं। जैसे हम कुरान पढ़ रहे हैं, पहला सजदा 9 पारा में, तो अब सजदा तिलावत आ गया, तो सजदा तिलावत का मतलब सजदा करना है, उसको डिले नहीं करेंगे कि जब पूरा पढ़ लेते हैं जितना पढ़ना चाहते हैं उसी में कुरान करीम को बंद कर दें, बंद करके आप एक सजदा कर लें, उसकी एक अलग दुआ है, सुभान रब्बिल आला नहीं है, उसकी अलग दुआ है, सजदा व जलील लजी खलक वसव शक्कत वसबी वली व कुव्वती फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, ये दुआ है, इसको पढ़ना है। पता ही नहीं। ये सजदा तिलावत उसमें सुभान रब्बिल आला नहीं पढ़ना है, सजदा तिलावत नहीं पता कोई बात नहीं, हम व्हाट्सएप कर देंगे, क्या क्या ग्रुप में डाल दीजिएगा। 2 सजदा ना करना है, एक सजदा करना है, तो वो सजदा करना चाहिए, वो लाजिम है, जरूरी है। अगर किसी वजह से ऐसे मकामात पे है कि नहीं कर सकते, ट्रेड में है या दीगर जगह पे है, तो आप घर पहुंचने के बाद कर लीजिएगा। इसीलिए तो है कि वहाँ झुकना है, झुकने के बाद तो बड़ी अच्छी बात है कि अल्लाह के लिए झुकना पड़ रहा है। उसमें तो फिर इमाम साहब वजू शर्त होगा ना कुरान पढ़ने के लिए वो जो शर्त है उसके लिए वो झुका सकते हैं। सजदा के लिए देखिए नहीं कुरान- तिलावत सजदा आपके के सवाल सही है, सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक क्या है कि वो कब आएगा, जब कुरान पढ़ेंगे तभी आएगा। तो कुरान के आदाब में से है कि हम वजू करके कुरान पढ़ें। बहुत पढ़ते पढ़ते में ना साइड करते कुरान से उसी टाइम करते हैं, खड़ा होकर करना है सजदा। नहीं खड़ा हो जाना है। हाँ बहुत सारे लोग ना खड़ा होके side बैठने करते का हैं। सजदा सौ कैसे सजदा तिलावत कैसे करना है, जैसे हम बैठ के पढ़ रहे हैं तो वही जमीन पे ऐसे ही चल जाना है, कुरान को अपना रख दीजिए। वो तो माजूर लोग करेगा, मतलब खड़ा नहीं। हाँ तो जो लोग नमाज कुरान से आप खड़े होइए, खड़े होकर सजदे में चलिए, जिससे जाया जाता है। इन सब नफिल नमाज बैठ के पढ़ती है कैसे? नफिल नमाज देखिए सबसे पहली बात ये कि नमाज का जो तरीका अल्लाह के रसूल ने बताया कि नमाज जैसे पढ़ने उसे पढ़ेंगे बैठकर। एक रिवायत आती है
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ कर पढ़ा है, लेकिन आपने उस पर हमेशगी नहीं बरता है। हमेशगी समझते हैं ना, मुदावमत, हमेशा नहीं। आपने एक मरतबा पढ़ा, ठीक है, आप भी कभी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानबूझकर इस चीज को हम सुन्नत बना ले कि नहीं आपने बैठ कर पढ़ा तो हमको बैठ कर पढ़ना है, ये सही नहीं। कभी कदर हो पढ़ ली, बोला गलत चीज है। नमाज की तो है ऐसा नहीं है कि पाँव दर्द को ऐसा बोले, कभी आपकी शौक किया कि अल्लाह एक हदीस मिलती है, अल्लाह नबी ने पढ़ा है, चलो पढ़ लेते हैं हम भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश ये करना है कि अल्लाह के लिए जब इबादत कर रहे हैं तो इबादत का परफॉर्मेंस 100% प्योर हो, सही हो, जो तरीका अल्लाह नबी का। आपने हमेशा नहीं बरता है, हमको हमेशा नहीं बरतना है, क्योंकि बैठ कर ना पढ़े तो खड़े होकर ना पढ़ सके तो बैठ के ना पढ़ सके लेट के, इसका एक सिलसिला जो बयान किया उसकी एक वजह है कि अगर कोई नमाज पढ़ा उसको ताकत नहीं खड़े होते बैठ के पढ़े, जो बैठ के पढ़े उसको ताकत नहीं लेट के पढ़े, तो लेट के पढ़ने की ताकत नहीं रखता तो आंख के इशारे से पढ़े। यही हदीस काफी है समझने के लिए कि बिला वजह हम जो है बैठ कर ना पढ़े। उसमें भी हाँ कंडीशन, उसमें भी एक चीज हम बता दें, देखिए क्योंकि नमाज की बात आ रही है तो सही चीज बताना बहुत जरूरी है कि एक मसला आता है तस्बीह का, जो होते हैं ना दाने होते हैं मोती के, जो तस्बीह के तौर पे हम गिनते हैं। और आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा हो गई कि इसकी सेलिंग भी ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा। और हम अक्सर देखते हैं नौजवानों को कि जो बिल्कुल सेहतमंद है, बिल्कुल जो फिट है माशाल्लाह, वो भी तस्बीह गिनते हैं। जबकि एक रिवायत आती है उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौरे खिलाफत में कुछ लोग थे जो हल्का बनाकर मस्जिद नबवी के अंदर और कंकड़ियाँ लेकर अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह करते थे। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने इस चीज़ को देखा तो गए और उमर फारूक से इस बात की शिकायत की। तो उन्होंने कहा था, नहीं अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने शायद था, तो उन्होंने कहा था जाकर उस हल्के वालों से कि अभी अल्लाह के रसूल की सामान अभी तरोताजा है, घर के जो सारे सामान उनके जाने के वास्ते वो ताजा है, कि सब कुछ अभी बाकियात अभी जिंदा है, और तुमने दिन में बिदत ला दी। बिदत है, अल्लाह के नबी ने कभी ऐसा नहीं किया। तो उंगलियों को पोर पे अल्लाह के वसल्लम तस्बीह गिना करते थे, आप गिनिए उस चीज को, आप गिनिए, लेकिन आप बिल्कुल तौर तंदुरुस्त है। हाँ तस्बीह गिर सकते कौन लोग, जिन जो बूढ़े हो गए, जिनकी यादाश्त कमजोर हो गई कि आया 33 बार है, उसमें भी एक बात हम बता दें, भूल गए तो कोई बात नहीं, अल्लाह जानता है कि आपका जहन उस लायक नहीं है कि आप एक्यूरेट याद कर सके, उसमें भी आप तस्बीह की इस्तेमाल ना करें। फिर भी अगर कोई कहता है कि नहीं हम गलती नहीं करना चाहते, हमारी इबादत है, उम्र का आखिरी मरहला है, इसके बाद क्या होगा नहीं होगा, तो ठीक है आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आपको ये सोच के इस्तेमाल करनी ये है कि हमारी काउंटिंग में गलती हो रही है, इसकी वजह से हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना उसकी भी इजाजत ना दी जाए। एक बात, अब एक आदमी को हमने मना किया, इसलिए समझाया इसलिए कि आप जवान है, ऐसा है, आप परहेज कीजिए, ये एक तरह की बिदत है। बिदती है कि आपने अपने हाथ में ले लिया, आप जब अल्लाह ने आपको ताकत दिया है तो कहने लगे नहीं ऐसी बात नहीं है, हम लोग इज्जत नहीं मानते। हाँ उन्होंने कहा कि बिदत कैसे होगा, ये तो अच्छी चीज है, मामला है। तब बोले एक काम कीजिए, आप अगर समाज में आएंगे तो व्हील चेयर पे आइए। बोले क्यों आए, वही तो ठीक ठाक है, क्यों नहीं आई ना, व्हील चेयर पे आइए, तो बैठ के आइए, मजा लेकर एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से, इसका तो कोई मसला नहीं कि राइट हैंड से ही पढ़ना है। कोशिश कर राइट हैंड से पढ़े, लेफ्ट हैंड में ना है। ऐसा है मसला। हाँ राइट हैंड भी तस्बीह होती है। ठीक है खत्म है। नहीं और कुछ सवाल नहीं। दर्स के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम तो हम सबों की हाजिरी को कबूल फरमा, अल्लाह में से जो बीमार हैं उन्हें शिफा आजिला व कामिला अता फरमा, और अल्लाह में से जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानियों को आसान फरमा, और जो दर्स अल्लाह ताला तेरे फजल व करम से जारी है सारी अल्लाह इसको क़यामत जारी सारी आमीन। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।